मुलवीर राय आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। जी, मुलवीर राय जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ, हाँ। Namaste, namaste. Thank you very much indeed. You can speak in Hindi. My Hindi is not that good. I can ओके, try if you want, but I can. I think either Nepali or English is my, you know, ओके, 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 नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। is English okay? Is it? हुँ। Is English okay? आप या इंग्लिश इज़ ओके बट यहाँ के हमारी जो पब्लिक है ना, वो Sure. हिंदी मीडियम है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कोई रिप्लाई लेना चाहेंगे वो मैं हिंदी में दूँगा क्योंकि हमारी रिप्लाई Definitely, हमारी पब्लिक definitely. सुनती है। हाँ जी, Definitely. ओके। Like first off, I really would like to thank you, and I really would like to extend my gratitude to you guys. Who have been doing this revelation that went, on until now. It's really eye opening. I've just found your channel a few weeks ago, and since then I am incessantly, continuously following you, listening to your every videos, and it's like I said, it's real eye opening. The reason I came here today is there are few misunderstanding, or maybe I have not understood. So I really would like to clear. In doing so, this may turn out to be a debate. So if there is no debate, there is no point coming in to say just thank you. So I suppose there will be a debate on some point. So like I said, there are some points which really was eye opening, like Osomeg means horse sacrifice. I never thought Osomeg was horse sacrifice. Um, my entire life, I was thinking Osomeg Yagya was just leaving the horse and leave them in the jungle. That's the Yagya I understood. That was, and Ram was a non-veg. That is use revelation caste system. You incessantly, continuously, invoking caste system. That is really useful for me. I'm Rai. I'm Vaishya by you know in the scriptures. I don't know what in the scriptures, or by Gita, or whatever it is. I'm Vaishya, but in Kirati, on top of that Kirati. In the meantime, I also would like you to shed some light on Kirati. What exactly Kirati means? I suppose you know about it better than me. And only yesterday or this morning, I was listening one of the videos. There you've said Bikram Sambat was started about 1,000 years ago, but I think Bikram Sambat, which also in Nepalese calendar we use Bikram Sambat, that is 2074. So obviously it is 57 years older than Christian calendar, English calendar. So I think 1 year is just about a 1,000-year-old is not quite there. Maybe I have not understood. And let's come to the point. Religion. So I may take another 5 minutes, then I keep quiet, and I'll let हुँ, you हुँ, expand. हुँ। ज़रूर, ज़रूर आप बोलें। Right, religion before Buddha. Which religion existed in India? I think one of the episode you said that there was Buddhism before Buddha. If that was the case, before Buddha was there not eightfold path and all that? Buddha instructed non-violence and all that. Where those Buddhists violent and silent before Buddha? Um, if I couldn't explain this question, then I can elaborate. But now let me finish my point. As for God, I think this topic is something that goes on forever if we really would like to discuss, because science hasn't proved there is no God, rather proved rather than proved. There is no God, and theists who believe in God haven't proved that either. The reason is, I think, simple. God is everywhere and everyone. You
see a tree there, for instance, for example, and I see that tree as God. If I say, look at that something, let's say a cup of tea, and you understand that's a cup of tea, but if I say, look at the God, and you laugh at it, because that's the name, Nama and Rupa, which we are accustomed to understand things, but that's the creation of something. Let's put it this way: something. Don't say God now, but put it something. It is simply. I understand God is, as many people say, it's love. Nothing other than love. You love your parents, of which you cannot give the evidence. Can you give the evidence of love? No, you can't. If you say, yeah, I'm taking care of my parents, that's the evidence of my love, and that's not evidence. As a jailer can take care of the prisoner, a captor take care of captive, but there is no love, but they're taking care of that. But sometimes we need to trust and believe without seeing the evidence. I know you are after the evidence of everything. I know that. I appreciate that. But sometimes it doesn't work like that. For instance, if you see head of a coin, then you don't have to see the tail of a coin, because you know there is a tail. When it comes to spirituality or God, there is a very, very, very difficult to prove it. Now, I'll say one thing: my experience. That's the main reason I really tried to come to this debate. One, my own experience, first-hand experience. It might take 5 minutes, another 5 minutes to tell you. One, my experience. Now, let me come to the point. I grew up in a politically aggressive in a way, and progressive family. In school and college, I followed communism, disregarding all orthodox nonsense. I rejected the salmon gods. I canceled everything. But there was a turning point in my life. You see, let's long story short. One evening, what happened? It's very interesting. One evening in my village in Solukhumbu of Nepal, there are two parts of villages, lower parts and upper parts. I live in upper part of the village. In the lower part, one evening around 10 p.m., my three brothers and I, or rather two brothers and I, plus one of my friend was visitors in the evening. We had our dinner and we were having a chat. We were about to go to bed. We suddenly heard a commotion, a big kaila baila in the lower village. We instantly thought someone is being robbed, or robbers or dacoits into the village and caused havoc. And my two brothers, myself and my friend, we simply grabbed kukuri, really, a big kukuri, and batons, loro, big loro, and we ran down to the lower village. Now the drama began. There lived a family of Dorji, which is Shudra. Shudra family lived there in a house. Their parents, there lived parents and one son and one daughter, two children. And on the particular night, parents had gone to their master, what we say, Bista, to sew their clothes, and they lived there overnight. They didn't come there. Now, what happened was, as soon as the brother and sister went to bed on the first floor, the sister was attacked by some unknown force and went unconscious. So the brother came down and shouted, "Help, help, help, guhar, guhar, guhar," everywhere. When we arrived, we four, men arrived there. About 30 people were already gathered, watching the drama. The drama was, we could see, we could hear a male voice, gruffy voice, sounds like as old as 70, 80 years old, like that.
sang random songs, and circled the house. Just a sound, just a song, circled the house. We don't see anything but singing voices. Not only that, listen, stones, woods, and old torn clothes. They land in front of us from nowhere. That gruffy sound, that gruffy voice of 70, 80 years old man continues. You know what? If we utter something, say nasty, if we say something nasty, you will be hit by a piece of wood or stones. ओके One hand, मुलवीर राय जी, yes, गॉट इट। देखिए, आपका जो प्रश्न था, उसमें जो सबसे पहले तो आपने एक बात कही, गॉड एक्जिस्टेंस को लेकर बात कही है आपने, that, और दूसरा जो है आपने कहा कि बुद्धा से पहले क्या था? बुद्धा से yes, पहले कौन-सा रिलीजन था? ये आपके yes. 2 मेन। इसमें आपको क्या लगता है कि बुद्धा से पहले कौन-सा रिलीजन था भारत में? Yes, in my opinion, purely opinion, which you don't want to hear my opinion, because I don't have any evidence. That's why it's pointless to say my opinion. So अच्छा, I ओके, I go ओके। to you. ओके, कोई बात नहीं। और गॉड एक्जिस्टेंस पे आपका क्या कहना है कि गॉड Yes, एक्जिस्टेंस जो this है this वो yeah this may है yeah this लेकिन लोग जान नहीं पा रहे हैं। आप ये कह yes रहे हैं ना? yeah this अच्छा, my मैं particular experience. What I'm saying trying to say is हुँ, this my particular experience. You see, हुँ, we've been there that particular night. That episode repeated for 3 months, not one night, 2 nights, but 3 months. You see, continuously. And हुँ, what I thought in my life is okay. Wait, if there is a baddie thing, dark, energy, dark whatever, there should be a good opposite of it. So that must be a god. ठीक है, आपने आपने बात रख ली, मैं सुन लिया। अब Yeah. मैं आपको बता देता हूँ, गॉड की बात बता देता हूँ मैं आपका। देखें, गॉड को मानना, आप क्यों मानते हैं किसी चीज़ को? कि कोई भी है, आपकी लाइफ़ है, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर आप गॉड को क्यों मानेंगे? सबसे पहला ये सवाल है कि आप मान ही किसी चीज़ को क्यों रहे हैं? मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, और उस Okay. छोटे बच्चे का उसको मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, उसको Okay. भूख लगती है, खाना खा लेता है। और उसको खेलने का मन करता है, उसको जो चाहता है वो चीज़ उसको मिल जाती है या उसको लेने का प्रयास करता है। इसके बीच में कहीं कोई गॉड नहीं है। Mhm. गॉड का मतलब ही है लालच। लालच आप समझते हैं? ग्रीडनेस, ग्रीडी। You do आपके absolutely. अंदर जो ग हाँ, आपके अंदर जो लालच है, लोभ है, उस कारण से गॉड की भावना आती है। गॉड की भावना का मतलब ही है लालच। एक इंसान के अंदर अगर लालच है तभी गॉड आएगा। अन्यथा एक छोटे बच्चे को देखिए, एक गोद में जो बच्चा हुआ है, उसको किसी गॉड की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। पता है क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि वो क्या करता है कि उसको भूख लगती है तो रोने लगेगा, दूध पिला दो, दूध पी लेगा। फिर उसको खेलने का कोई उसके साथ खेल रहा है तो खूब हँसते-खेलते रहेगा। उसको कोई गॉड की ज़रूरत नहीं है। ना उसको कहीं नमाज़ पढ़ने जाने की ना मंदिर घंटा बजाने की खाक नहीं ज़रूरत है। वो अपनी दुनिया देख रहा है अगल-बगल, उसको अपनी खुशी चाहिए। अब जब वो बड़ा हो जाएगा, अब वो चाहेगा कि हर चीज़ जो है मुझे मिले, जब उसको नहीं मिलेगी, अब उसको कोई आसान रास्ता दिखा देगा। उसके घर परिवार वाले उसको मारेंगे, पीटेंगे, बजा देंगे, सिखा देंगे कि देखो गॉड है, तो वो ना तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। अब उसकी इच्छाएँ जो बढ़ रही हैं ना, उसकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए जो परंपरा आ रही है, देखता है कि अच्छा वहाँ पे किसी ने कह दिया था कि वहाँ पे जाके मन्नत माँगोगे तो आपको गॉड वो दे देंगे, या आप ये पूजा-पाठ करवा लोगे, हवन करा लो, नमाज़ पढ़ोगे तो आपको, या फिर उसको डर दिखाया जाएगा कि आपको सज़ा मिल सकती है। एक छोटा बच्चा के सामने आग लगा रहेगा ना, तो बच्चा जो है ना आग में भी हाथ डाल देगा, उसको डर नहीं है। हाथ जलेगी जब उसको डर आ जाएगा, अब उस डर का आप लाभ ले सकते हो। आप बता दोगे कि तू मरेगा ना तो जहन्नुम में तुझे अल्लाह ईश्वर जो है आग में झोंक देगा। अब वो Exactly. फ़ील किया हुआ है, यस, जस्ट जस्ट 1 मिनट। Yeah. अब उसने फ़ील किया हुआ है आग से कि हाँ यार, आग ना हमको जला सकती है। जब तक नहीं फ़ील किया था, तब तक उसके अंदर डर नहीं था। यानी कि आपकी ईश्वर की भावना ही तभी आती है जब आपके अंदर ना डर आ जाए। तो ईश्वर जो है वो कहाँ से आता है? लालच से आता है। आपकी जो असीमित जो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लालच उत्पन्न होता है, उसके लिए आता है। वो Mhm. डर के कारण आता है। कोई अगर डरा दे कि आपके साथ ये बुरा हो सकता है, आपको कष्ट होगा, तो भी आप मानने लगोगे। तो आप देखें जितने भी धर्म हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं,
चाहे इस्लाम को ले लीजिए, चाहे आप जो ब्राह्मणिज़्म है उसको ले लीजिए या जितने भी जो ईसाइयत को ले लीजिए, वो हमेशा ही ना नरक की बात करेंगे, जहन्नुम की बातें करेंगे, वो हेल की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये थोड़ा मैच्योर हो गया है, कष्ट जानता है कि दर्द होता है, दर्द को महसूस कर चुका है, तो उसका लाभ लेते हैं कि तुमको भविष्य में कोई ऐसे फ्राई कर देगा, तेल में फ्राई कर देगा, आग में झोंक देगा। तो ईश्वर की बात सिर्फ़ एक हौवा है, सिर्फ़ हौवा, हौवा मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ़ इमेजिनेशन है कुछ भी नहीं। I अगर think आपको actually, हर चीज़ मिल रही है sorry, जी, actually, देखें आपकी मैंने बहुत लंबी बात सुनी है, आप सुन लीजिए, before मेरी you पूरी बात proceed, सुन लीजिए। I आप think मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना, आपकी आपकी you बात मैंने पूरी misunderstood me. सुनी ना। देखें, आपके कारण यहाँ पे पता है 300 लोग सोने चले गए थे क्योंकि हिंदी मीडियम है, तो वो सोने भी चले गए आपकी इंग्लिश सुन के। लेकिन यहाँ पे आप मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो बुद्ध धम्म है, बुद्ध Hmm. धम्म, उसने ईश्वर की नहीं बात की। तो जब ईश्वर की उसने नहीं बात की है, तो उसने आपको कभी डर दिखाया कि आपको जो जाओगे तो नरक में आपको कोई तेल से फ्राई करेगा? उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसने क्या बात की, उसने आपके उस डर को पहचान लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा, उसने पहचान लिया कि आपके अंदर ये जो 5-6 जो दुर्गुण हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण ही तो आपको ईश्वर की ज़रूरत पड़ रही है। उसने उन्हीं को दूर करने की बात कर दी, कि जहाँ से ये पनप रही है ना आपके अंदर डर, लोभ जहाँ से आ रहा है, उसी को Hmm. खत्म कर दो, आपको ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बुद्धिज़्म दुनिया का सबसे वेल साइंटिफिक धर्म Agree. कहा गया, क्योंकि उसने उस बीमारी को ही पकड़ लिया कि ईश्वर नाम की, गॉड अल्लाह नाम की बीमारी पनपती कहाँ से है। Agree. उसी के जड़ को पकड़ लिया। अब आपका ये सवाल था कि बुद्धा से पहले फिर भारत में क्या था? तो बुद्धा से पहले भारत की जो संस्कृति पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है और सिंधु घाटी सभ्यता 4,500 साल भी पुरानी है और वो 4,500 साल पुरानी यानी 4,500 ईयर्स बिफोर उतनी पुरानी जो सभ्यता है, उसकी चीज़ें, उसकी जो शिल्प कला है, आप कह सकते हैं क्वाइंस टेराकोटा जो सील मिली हुई हैं, उनमें जो चित्र बने हुए हैं, जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो बुद्धिज़्म की शिल्प कला से मैच करती है प्रॉपर। ऐसा लगता है कि वही सिविलाइज़ेशन को ये कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे थे और भारत से जब सिविलाइज़ेशन बुद्धिज़्म का खत्म किया गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म कर दी गई। ये दोनों चीज़ें खत्म थे। So, क्योंकि ऐसा देखा सुन लीजिए, भारत से ना 2 सिविलाइज़ेशन सीधे-सीधे गायब थी, बुद्धिज़्म की और सिंधु घाटी सभ्यता की। इन दोनों के बारे में नहीं। ऐसा होता ना कि कोई बुद्धिज़्म की भी सभ्यता जान रहा होता, तो ये हो सकता था कि उसको भूल गए। दोनों सिविलाइज़ेशन गायब थी। यानी वो दोनों आपस में कनेक्टेड थी, इन दोनों को गायब इनकी लिपि भाषा कोई नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन जो गुप्त वंश है या फिर जो सम्राट अशोक का वंश है, जो बुद्धिस्ट जितने भी किंग थे, उनकी लिपि को पढ़ लिया गया। तो पढ़ लिया गया तो बुद्धिस्ट का तो पूरी तरह से पता चल गया। सिंधु घाटी नहीं पता चल पाई, लेकिन वहाँ की जो चित्रलिपि है, उसके जो सिंबल्स जो उसमें बने हुए हैं, वो पूरी बुद्धिज़्म से मैच खाती है। अब अगर हम उनके थ्योरेटिकल बात करें, उनके स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो उसमें वो पूर्व बुद्धों का ज़िक्र करते हैं। पूर्व बुद्ध यानी कि पहले के बुद्ध और बुद्धा को 28 बुद्धा मानते हैं। भारत में ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, उन लोगों ने भी ज़िक्र किया है बुद्ध से पहले के बुद्ध का। उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि सम्राट अशोक जब जो आपका नीलगिहुआ है, वहाँ पे जब अपने इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कोणागमन बुद्ध का ज़िक्र किया और भारत के अजंता केव्स मिले और भरहूत स्तूप मिले, वहाँ पे 5 अलग-अलग बुद्धों के मतलब नाम भी मिले हैं। मतलब तो इससे ये eightfold पता path. चलता है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, यानी कि बुद्धा की जो सिविलाइजेशन है वो पहले से चली आ रही थी Okay. और इसीलिए उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। उसको ये नहीं कहा गया है कि जैसे इस्लाम को कहा गया कि इस्लाम को इन्होंने शुरू किया, मुहम्मद ने, जीसस से शुरू हुआ ईसाईयत, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि पूर्व बुद्ध थे। जैसे सिखिज़्म में 10वां गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, कोई ये नहीं कह सकता है कि वहीं से सिखिज़्म शुरू हुआ। वो कहेंगे कि नहीं, गुरु नानक जी से शुरू हुआ। उसी तरह से जैनिज़्म में भी लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसी तरह से बुद्धिज़्म में ये माना जाता है कि उनसे पहले जो हैं 27 और बुद्ध हुए थे। तो इस तरह से सिविलाइजेशन पहले से चली आ रही थी। ये चीज़ था यहाँ पे, So मूलवीर राय जी। civilization was there. So eightfold path, those were not there, and Buddha introduced it. Is that the case? हाँ, पहले कई सारी चीज़ें जो हैं बुद्धा ने उसमें इंट्रोड्यूस की है। जैसे आप देखें 4 आर्य सत्य, बुद्धा ने उस पूरी बीमारी को ही ख़त्म कर दिया जहाँ से ईश्वर पैदा
हो सकता था, उस पूरे बीमारी को ही उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने बात की किसी इंसान के, कोई भी 2 तरह की बातें की उन्होंने, कि आपके अंदर लोभ लालच कैसे आ सकता है? आप कोई कर्म कांड क्यों करवा सकते हो? तभी आप करवाओगे जब आप उस काम को नहीं करना चाहते हो, आप कोई शॉर्टकट चाहते हो कि हम थोड़ा-सा पूजा अर्चना कर लें, कुछ कर लें या कोई दूसरा कोई वो काम कर दे। समझ रहे हैं ना? जैसे बीच के मीडिएटर होते हैं, दलाल होते हैं, कहते हैं कि आप इतना पैसा मुझे खिलाइए और इतने प्रोसीजर से आपको नहीं गुज़रना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर मैं कर दूँगा, आप मुझे बस पैसा दीजिए। तो ये बुद्धा ने इसी चीज़ को तो दूर किया कि जो दलाल है, एजेंट है, वो तो कम से कम उस प्रोसीजर को सॉल्व कर रहा है, लेकिन जो ब्रह्मानिकल सिस्टम है, उसने तो उस प्रोसीजर को भी नहीं सॉल्व किया। कोई गॉड होता ही नहीं है, कोई गॉड होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को मूर्ख बनाने का एक धंधा था ना कि कोई गॉड नाम का चीज़ है। मान लीजिए कि आप वहाँ हैं, आपने बिना गॉड को माने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार ली, तो आपके लाइफ़ में क्या असर पड़ेगा? या जितने नास्तिक हैं, जो गॉड को नहीं मानते, उनके लाइफ़ में क्या असर पड़ता है? Okay, कोई असर okay. नहीं पड़ता, Can कोई I? असर नहीं पड़ता। Yeah. No. हाँ जी, हाँ, Can I take 5 minutes? 3 minutes. हाँ, I'm sorry. बोलिए, Okay. बोलिए। In terms of God, I think you slightly misunderstood me. But before that, what about your thought on my experience that I just mentioned? I think 1 or 2 videos you have clearly said there is no bhut pret, no pisat, and I think not once but a couple of times you've said that. So I was particularly interested. This is my first hand experience. What do you say about that? What do you think? देखें, किसी व्यक्ति का कोई जो एक्सपीरियंस होता है कि हमारे साथ ये चीज़ घटा, Mhm. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ वो घटा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए धरती जो है, आप कह सकते हैं कि पहले के जो लोग थे, वो ऐसा सब लोग को लगता था कि हम सुबह उठते हैं, देखते हैं कि सूर्य तो पूरब में, ठीक है, ईस्ट में उगता है। सबको दिखता था कि उगता है। तो जितने जो धर्म थे उन लोगों ने ऐसा सोचा, किसी ने सोचा कि पानी में से निकलता है या कहीं रथ-वथ पे बैठा रहता है, उधर से आता है। घूमते-घूमते वो सोचते थे कि रथों का आविष्कार हो गया है, घोड़ा है वही खींच के ले जाता होगा, उस पर सूरज देवता बैठे होंगे, ऐसे घुमा के लेके जाता होगा। फिर कोई बोल दिया कि कीचड़ में जाके शाम को डूब जाता है। लोग ऐसा सोचते थे कि सुबह दिन भर ऐसे टहलता है, रात को सोने चला जाता है, फिर रात में चंदा मामा जो हैं, मून जो हैं, वो ड्यूटी देने आते हैं। पहले लोग ऐसा सोच लेते थे। तो अब सबका ये एक्सपीरियंस था। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने इस आधार पर अपने-अपने देवी-देवता, अपने-अपने धर्म में सूर्य और चंद्रमा की No, बात लिख ली। और let's make it सुन different. लीजिए, यस मौलवी राय, आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो इसी का एक पार्ट है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ़ इस ऐसे ही है। एक्सपीरियंस जो होता है ना, उस लॉजिकल फ़ाल्सी में आता है ना ये लॉजिकल फ़ाल्सी है कि हमारा एक्सपीरियंस, एक सिंगल व्यक्ति का Yes, एक्सपीरियंस yes, जो yeah. है, I'm तो not सुन talking about यस, you. रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। तो अब ये जो एक्सपीरियंस की कहानी है, तमाम लोगों के एक्सपीरियंस की कहानी है, हर धर्म की अपनी एक्सपीरियंस की कहानी थी, उसको वो साइंस समझते थे। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि सूर्य कभी ना उगता है, ना डूबता है, बल्कि पृथ्वी ही उसके चक्र लगा रही है, चक्र घूम रही है, उसी के अगल-बगल, और इसके मोशन के कारण से ये दिन और रात होते हैं। अब हम जान चुके हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ दरअसल यहाँ पे बात क्या है? आपका लैक ऑफ नॉलेज होना। किसी घटना के पीछे आपके साथ कोई घटना घटी या आपने कोई घटना एक्सपीरियंस की या देखा, उसके Okay. अगल-बगल की जो जो चीज़ें हैं, उसके कारण को आप नहीं समझ पाए, तो So आपने उस आपके let's माइंड talk में एक पूर्वाग्रह particularly. बैठा हुआ था भूत-प्रेत का, आपने उससे जोड़ लिया। हाँ, So बोलिए, let's talk about the बोलिए। particular episode. Okay. So what was that thing that threw stones and piece of wood, and and really it is really not 1 minute, 2 minutes, but the whole night. Okay. Not only me. There were I think 50, 60 people witnessing the episode, witnessing the incident. So you said two things. One, it's not universal truth. That is the universal truth. One, the universal truth means, I mean, that happened. It's not only me. I wasn't dreaming. I'm not making things up. It's not story. It's not myth. It's a real there. One. Secondly, you said I might have misunderstood the real thing. I might have missed. So what I'm not saying that is both or whatever. Tell me what could be potentially, what could be the reason. Later, what happened in that episode was
the shaman came. When he started his mantra, he was thrown away at least 20 feet away. He was nearly killed. And the shaman, he packed things up and went. And finally, after 3-4 months, another really famous shaman came and sorted sorted the things out. So, what could be the reason, in your opinion? I'm not giving you, this is this, but what could be the reason? Science journey, tell me what could potentially be the reason, in your opinion. देखें देखें मूलवीर राय जी, एक चीज़ तो आप क्लियर कट समझ जाइए कि अगर आपके सामने कोई मंत्र फूँक दिया और आपको लगा कि वो भूत वहाँ से चला गया, क्या आपके ऊपर कभी भूत आया है? आपने कभी फ़ील किया है कि आपके ऊपर कभी भूत आया हो? I wish Science Journey ji, you were there, and you would हुँ? have known exactly how you experienced. नहीं, How नहीं, we मैं मूलवीर saw. राय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो ये बता रहे थे कि मंत्र फूँक दिया फिर वो चला गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि कोई भी Yes, भूत-प्रेत जो है आपके ऊपर आया हो? Science Journey ji, it's not my upar, but I have witnessed it with हाँ, my. बस तो आपके ऊपर नहीं आया ना, आप दूसरे की घटना टेल कर रहे हैं ना, दूसरे की घटना आप स्टोरी सुना रहे हैं ना। दरअसल हमने जो It पिछला is वीडियो not. लॉन्च It is किया not था Ghatna. It is my Ghatna, Science Journey ji. तो It आप is my आपकी Ghatna. घटना हुआ अच्छा आपकी घटना में क्या हुआ क्या था? एग्ज़ैक्टली क्या Okay. घटा था? Oh, पूरा पूरा my क्लियर Ghatna. बताइए। I'm हुँ, telling this पूरा to you. पूरा क्लियर बताइए। हुँ, We, 4 people, we rescued the हुँ, girl from first floor. When we went up हुँ, the first floor, you see, the train Nanglo, what we call it Nanglo, the crane was there waning. You see the whole moment, whole movement, and you हुँ, see sound and everything. And when we हुँ, when we tried to lift the girl, that 11-year-old girl, she हुँ। was stuck like it's super glued on the bed. We couldn't move it. इससे भी खतरनाक मेरे साथ घटना घटती है। इससे भी खतरनाक, Okay. पता है? लेकिन मैं इसको भूत-प्रेत नहीं मानता हूँ। So पता है what do इसको you? मैं क्या कहता हूँ? सुनिए, आपने ड्रिंक किया हुआ था उस दिन? Oh, forget it. No, never. फॉरगेट इट नहीं ना अरे देखें नेपाली लोग ऐसा नहीं है कि नहीं पीते हैं, हमेशा पी के पड़े रहते हैं, हमें नहीं, नहीं. पता है। आप सही-सही बताइए आप पी के गए No, थे ऊपर? I never drink. हुँ, I never drunk. I हुँ, was I was a school teacher, and I हुँ। came from school in the evening. My brother. अच्छा आप ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए आप? No, I never drink. I don't do. नहीं करते हैं, ये तो गज़ब के आप नेपाल के पहला ऐसा मुझे व्यक्ति मिले हैं जो ड्रिंक ही नहीं करता है। हमने Yeah. तो ऐसा ही सुना है कि नेपाल के व्यक्ति अगर ड्रिंक ना करे तो वो ज़िंदा ही ना बचें। चलें, Uh, देखें mhm. ऐसी घटनाएँ ना बहुत लोगों ने बताई है। बहुत सारे लोगों ने बताई है Okay. कि मैं वहाँ गया मुझे 11 इयर्स की लड़की मिली फिर गायब हो गई। वह मैं सो रहा था वहाँ चलते हुए मुझे दिखी फिर गायब हो गई। उसके बाद से ये हो गया, वो हो गया। ये सारे इल्यूज़न होते हैं, भ्रम होते हैं। I would say that. अगर Yes. अगर कोई ऐसा घोस्ट होगा ना, तो आपको इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे आप आज मुझसे बात कर पा रहे हैं ना, अगर भूत घोस्ट होगा ना, तो आपको ऐसे थोड़ा-सा दिखा के इधर-उधर करके भागेगा नहीं, आपके पास आएगा, बैठेगा इत्मीनान से और बैठ के आराम से आपसे बात करके जाएगा। और वो जितने नास्तिक लोग जो हैं, जो नहीं बात आपकी मानते हैं, जो घोस्ट की, उसके साथ बैठ के मीटिंग करके जाएगा ना, अपना सबूत देके जाएगा। अरे! ऐसा क्या है भूत का कि भई किसी व्यक्ति को दिख गया, सिर्फ़ उसी को जो मानता है जो नहीं मानता है उसके सामने उसको आने की हिम्मत तक नहीं है। हम लोगों को आज तक एक भी भूत-प्रेत कभी नहीं आया। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आता है जो कहते हैं कि हमको वहाँ दिख गया था, वहाँ एक्सपीरियंस हो गया था। भाई इतना आपका डरा हुआ भूत क्यों है? आपने Nice. इतना डरपोक भूत क्यों बना रखा है? Like I said. मूलवीर राय सुनिए मूलवीर राय। Uh-huh. देखें, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, खूंखार जो लोग होते हैं ना, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना था ना आपने? Ji. ओसामा बिन लादेन का नाम सुना था ना आपने? Ji, ji, ji. Sure. हाँ, उसने भी तो पेंटागन पे हमला कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? Uh-huh. उसने पंगा भी लिया तो सब दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ से पंगा लिया। उसने अपना एविडेंस दिया ना। तो भूत होता है, लेकिन ना वो साइंटिस्टों के पास जाता है, ना नास्तिकों के पास जाता है। उसका प्रूफ क्या होता है तो सिर्फ़ नास्तिकों कुछ के पास लोग जो गाँजा आया। फूँक के सुन I was अरे Nastic. I was आप कोई Nastic. नास्तिक Yes, नहीं yes. हैं। अरे आप कोई नास्तिक नहीं है भाई, I was आपने Nastic. उसकी Don't वीडियो you? सेल्फी ली आपने उसके साथ? आपने Oh, उसके साथ सेल्फी ली? that आपने उससे was कहा कि प्लीज़ यहाँ रुक जाओ मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, मेरे साथ इंटरव्यू करो। मैं इंटरव्यू करके दुनिया को दिखाऊँगा कि मैंने आज भूत का इंटरव्यू लिया। science journalism. आपने ऐसा किया? If it हुँ, was today, there were 50 videos, going around now.
but that हुँ। was 35 years ago. Now I'm 54. That was 35 years ago. After that, there are so many, so many things happened. So I think it's not very convincing that what you're saying. नहीं, नहीं, Uh, नहीं, मूलवीर राय यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपने जो क्लेम किया है ना भूत का, दरअसल claim on सिर्फ़ me, वही claim लोग on me. ये दिस This is not दिस true. इज़ क्लेम। नहीं, नहीं, ये I, क्लेम है, सुनिए, I didn't say ये it. क्लेम है। अरे ये Which क्लेम होता है, मूलवीर राय जी ये क्लेम होता है। यहाँ 1 मिनट रुकिए आप, I सुनिए। didn't say which. क्लेम क्या होता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड्स ने ये दावा किया कि वहाँ पे चले जा, वहाँ भूत तुझे मार डालेगा, रात I में didn't चले say जा which. भूत मार What you डालेगा। told. अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ना। किसी ने ये दावा किया शमशान घाट में चले जा तू भूत मार देगा। हम लोग रात के 12 बजे शमशान घाट में गए हैं। हम लोग रात के 12 बजे ही नहीं कई जगहों पे हम लोग गए हैं, उन जगहों पे गए जहाँ पे भूत का दावा किया गया लेकिन भूत नहीं मिला। पता है क्यों नहीं मिला भूत? भूत इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हर व्यक्ति जो अपना एक्सपीरियंस सुनाता है ना, उसका अपना इल्यूजन होता है, उसकी अपना जो सोच होता है, पूर्वाग्रह होता है, उसको वो बता देता है, समझा देता है कि भई ये भूत है। अगर I भूत said होगा ना बाकायदे भई वीरप्पन था, वीरप्पन चंबल घाटी में रहता था, उसने भी इंटरव्यू दिया था। अरे वीडियो बनाया था उसने, पत्रकार को अगवा करके बैठा के अपना फ़ोटो खिंचवा के भेजा। खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति भी अपना ये करके देता है। अगर भूत नाम का कोई चीज़ होगा ना, तो सिर्फ़ उस व्यक्ति को थोड़ा-सा आपको दिखा के नहीं भागेगा ना वो। वो जो नास्तिक होगा सबसे पहले उनको प्रूफ़ देने आएगा, बैठेगा कहेगा हम इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, हम thanks. इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है। I think दुनिया में देखें हर जीव छोटा से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव जो विज़िबल है, आप कोई साइंटिस्ट नहीं है ना मुलविर राय, आप साइंटिस्ट नहीं हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, हम क्वार्क पार्टिकल की बात करते हैं, जो विज़िबल नहीं होते हैं, उनके भी प्रॉपर्टीज़, उनके भी जो मास, उनका मॉलिक्यूलर वेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो तक मेज़र की जा सकती हैं। और भूत जो आपके आँखों से विज़िबल है, उसके बारे में साइंटिस्टों को कुछ भी नहीं पता। इससे पता चलता है मूलवीर राय कि आप अपने इल्यूज़न को भूत समझ लिए हैं दरअसल। so. आपका जो That was इल्यूज़न the one है, that वो believed me. भूत That was है। really, yeah. That was what we were trying to हुँ। say. Yeah. अगली बार आप मूलवीर राय क्या कीजिएगा, ऐसा कोई भी जो भूत मिले, उसको कहिएगा कि भाई हमको साइंस जर्नी तुमको मानता नहीं है। वो कट्टर नास्तिक है, उसको हमको प्रूफ़ देना है, तू हमारे साथ एक इंटरव्यू कर या फिर उसको पकड़ के लाइएगा, यहाँ इंटरव्यू कराइएगा, सब लोग बैठ के देखेंगे ना उस भूत को। Science journey. अभी I पता think है क्या होता है? देखें मूलवीर राय, मैं बता रहा हूँ, क्या होता है ना, कई तरह के ना गाँजा के लेवल आते हैं, फूँकने के बाद से रात में ना तरह-तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, क ऐसे-ऐसे गाँजे अवेलेबल हैं जिसको कोई मार दे ना फूँक, तो उसको रात में तरह-तरह के भूत दिखाई देंगे अलग-अलग और वो उसको ऐसे बात कर रहे होंगे, इस पे कई फ़िल्में बन गई। इस पे कई सारे रिसर्च हुए हैं कि कई ऐसे हैं जिसको पी लेने के बाद से, खा लेने के बाद से वो आदमी जो है उससे अपनी बात कर रहा था, ऐसे वो उसको समझा रहा था कि तेरी बीवी तेरे साथ ऐसा करती है, तू ऐसे क्यों नहीं जवाब देता? तेरे घर का तेरा पड़ोसी ऐसे बोलता है, वो आपस में बात कर रहे थे, भूत बन के। तो इसीलिए मूलवीर राय, आप जो है ना उस समय याद कीजिएगा ड्रंक तो नहीं थे। अगर ड्रंक नहीं थे तो okay. Say, आपका जो इल्यूज़न let's say होगा वो I was drunk. लेकर आया I होगा। was, I हाँ जी। was completely drunk. What about the rest of the 60 people, 50 people? All of them were not drunk. No. आपको पता है भारत में 1996 में पूरे भारत के लोग जो हैं स्टोन्स को दूध पिला रहे थे। Oh no. ये बात आपको पता है? No. सुन That's लीजिए, अरे सुन लीजिए। I've आप heard that. कहोगे सुन ली 1 मिनट। क्या आप ये कहेंगे कि भारत के सारे लोग बेवकूफ़ थे? जो पूरे हर मंदिर में किलो-किलो दूध लेके दूध की उस दिन खपत वो हो गई। सारा दूध उठा लिया गया मूर्ति को दूध पिलाने के लिए। अरे That's आप 59 लोगों की बात कर रहे हैं 60 लोगों की। यहाँ तो भारत में 100 करोड़ की जो जनसंख्या है दूध पिला रही थी सब लोग। सुबह से लेके शाम तक। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, गूगल भी नहीं था उस समय, जन्म भी नहीं हुआ था। तब सुबह से लेकर शाम तक पूरा भारत दूध पिला रहा था स्टोन्स को। तो देखें, जब आप ना फँसे हुए होते हैं, जब आप किसी चक्कर में फँसे होते हैं, तो जो पैरों की धम-धम है ना, वो भी पायल की छम-छम सुनाई पड़ती है। okay. मैं आपको एक एक सही एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, अब सुनिएगा। एक बार जब मैं कॉलेज का दिन है, उस समय क्या हुआ कि सारे बच्चे कहते थे छत पे कोई मत जाके सोना। छत पे ना चुड़ैलें घूमती हैं क्योंकि शमशान घाट के बगल में था, बगल में ही शमशान घाट था। कहते थे छत पे मत जाना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी और मैं जो है छत पे ही जाके सोता था मैं। मैं
छत पे ही सोता था जाके कि अरे कोई तो हमको दिख जाए, कौन ही पायल वाली है, छम-छम सबको सुनाई देता है, हम सोते हैं हमको कभी दिखाई नहीं देती, हमें कभी नहीं दिखाई दी। हमारा कोई इल्यूज़न नहीं, डर हमको लगता था, हमें भी डर लगता था, रात में कुछ इधर-उधर बजेगा तो उठ के देखूँगा कि अरे अब तो आया, अब तो आया, कभी कोई नहीं आया लेकिन। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। कहा कि देखें डर हम लोगों के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर डर होता है। लेकिन जो जिज्ञासा होती है ना, वो आपको बाँध के रखती है कि फिर भी मैं डटा रहा कि नहीं मैं तो देख के जाऊँगा कि है कौन जो पूरी दुनिया को छम-छम सुनाती है। हम छत ही पर सोते हैं, हमको रात भर सोते हैं, हमको आज तक कभी दिखाई नहीं दी। तो आप जो है आपका जो इल्यूज़न हुआ है, भ्रम हुआ है, उसी को आपने समझ लिया है कि ऐसा कुछ घटा था। देखें भूत होगा ना, तो पता है सबसे पहले क्या करेगा? उसको जो मारा हुआ होगा ना, जितने बच्चों का बलात्कार हो जाता है, आपने भारत में सुना होगा, बलात्कार हो जाता है, जो वंचित शोषित लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। पता है इनके भूत क्या करते हैं? डेली रात में जिन-जिन लोगों ने मारा है ना, उनके घर में दिन-रात बैठ के सुबह से शाम तक उसकी चड्डी तक उतार के खड़ा कर देते हैं, अगर भूत होता तो। समझ रहे हैं? हाँ, वो पता नहीं कौन-सी कहानी दुनिया से लेकर आए हैं। आप किसी भारत में इतने मजलूमों को मारा गया है, भूत नाम की अगर चीज़ होती, तो वो उनकी वहीं पे भूत बनता, शरीर से निकलता भूत निकल के जो मारा है ना, उसके ऊपर से नीचे तक चड्डी उतार के खड़ा कर देता वहीं पे। तो इसीलिए मूलवीर राय जी, आपकी जो स्टोरी थी, उसमें दम नहीं था। ठीक है, ओके, चलें फिर। ओके, ओके। अगली बार ना इंटरव्यू करके सुनिए मूलवीर राय जी, अगली बार उसके साथ इंटरव्यू कीजिएगा या उसको पकड़ के लाइएगा, सामने इंटरव्यू कराइएगा, सब लोग जो हैं हम सब लोग देखेंगे। ठीक है? चलें, चलें। चलें, काफ़ी समय दिया मैंने आपको। अगली बार भूत को ही पकड़ के लाइएगा, हम सब लोग बैठ के इंटरव्यू करेंगे।